Good morning, everybody. In your syllabus, the third unit is the electrochemistry, and in the electrochemistry, today we have to discuss about the electrolytic cell and the electrolysis process. So, first of all, what is electrolysis? अर्थात विद्युत अपघटन क्या है? विद्युत अपघटन किसे कहते हैं या इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है? सो देखिए, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस इज a product or any reaction in which the electrical energy converted into the chemical energy. अर्थात कि एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया या ऐसा उपकरण जिसमें विद्युत ऊर्जा के को हम रासायनिक ऊर्जा के अंदर परिवर्तित कर सकते हैं. तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी. सो दैट डिवाइस इज नोन एज द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल. सो इन द प्रेजेंस ऑफ electrical energy, this substance in the solution, either it is the main condition or in the solution, so it will dissociate. It will dissociate into the charged bodies. ठीक है? तो विद्युत ऊर्जा की उपस्थिति में विलयन में उपस्थित विलय पदार्थ अपने आवेशित कणों में विघटित हो जाता है. So electrolysis is a dissociation of a salt. आप इसे यूं भी बोल सकते हैं, ये एक अपघटन विधि कहलाती है. देखिए एग्जांपल है, say it is the NaCl, and NaCl is an electrolytic substance. It is the good conductor to carry the electricity also. So NaCl aqueous solution, हमने NaCl को aqueous solution में लिया है, जलीय विलयन इसे बोले. तो जलीय विलयन में ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी की उपस्थिति में, ये आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो NaCl will dissociate into Na positive and the Cl negative. So it is the cation and here it is the anion. So the two charged species which are opposite in nature. So the sodium ion is the cation, ये एक धन आयन है, और जो क्लोराइड आयन है ये एक ऋण आयन है, एनाइन है. So in this way, in the presence of electricity, the salt, that is the NaCl, dissociate into the charged species that is known as the ion. So these are the ion. And ion is the very important one because in the cell these ions carry out the electricity from one electrode to the other electrode. तो ये आयनों के माध्यम से ही विलयन में आयनों के गमन के द्वारा अपने विपरीत प्रकृति के इलेक्ट्रोड पर पहुंचने से उनमें विद्युत धारा का प्रवाह होने लगता है. So ions are the very important one in the electrolytic cell. So in this way, the Na ion, that is the cation. So far the electrolytic cell is concerned. Here the electrolytic cell. So the two platinum electrodes we may have, and both the electrodes they are connected with the outer source of the electricity. So it is the source of electricity to electrode, and here it is the NaCl, the solution of NaCl. So NaCl solution. We may have the melted NaCl also instead of the NaCl solution. So two electrode is there. Now the positive charge electrode is known as the anode. इसे आप एनोड बोलेंगे. And the negative charge electrode is known as the cathode.
right? So here it is the NaCl ion. So Cl ion will attract towards the anode, and the cation, that is the sodium ion, it will attract towards the cathode. So cathode is the negatively charged. So in this way the ions they discharge at a respective electrode. अर्थात इन धन आयन और ऋण आयनों का अपने अपने विपरीत प्रकृति के इलेक्ट्रोड पर विसर्जन होता है. So the electrode where the oxidation and the reduction will take place. देखिए हुआ क्या है यहाँ. First of all, here it is the cathode, right? So what will be the cathode? Cathode के ऊपर क्या होना है? So Na positive ion will get the electron from the cathode because cathode is negatively charged. So the electron density at the cathode is the maximum. ये यहाँ से अधिकतम है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन. तो ये इलेक्ट्रॉन कौन ग्रहण करेगा? Na positive. So sodium ion will get the electron and convert into the neutral body. अब ये न्यूट्रल में कन्वर्ट हो गया. पहले ये पॉजिटिव चार्ज था, इसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया और ये अपने न्यूट्रल स्पीशीज में कन्वर्ट हो गया. तो ये जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टेंस हुआ है, इट मीन द रिडक्शन इज टेक प्लेस. So we can say the positive ion get reduced at the cathode in the cell. तो सेल में धन आयन जो होते हैं वो इस कैथोड पर अपचयित हो जाते हैं. रिडक्शन का मतलब हो गया अपचयन, because they will accept the electron. Now at the anode, so at the anode the Cl negative, that is the anion, ये हमारे कैटाइन थे, ये anion हो गया. So the anion will lose the electron. They will lose the electron and convert into the neutral body plus electron. So we can say the anion donate the electron at the anode. तो अब क्या हुआ? इस Cl आयन जो नेगेटिव आयन थे उन्होंने इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया. So the donation of electron is known as oxidation. It is the oxidation, and the complete phenomenon is known as the redox. आप इन दोनों रिएक्शन को अगर कंबाइन कर देते हैं, then we say the reaction is redox. ठीक है. तो ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों को अगर हम सम्मिलित कर देते हैं तो वो रिडॉक्स रिएक्शन बन जाएगी, अर्थात ऑक्सी अपचयन अभिक्रिया बन जाएगी. तो आपसे पूछा जाए कि सेल में रिएक्शन किस प्रकार की होती है, तो आपका आंसर होगा रिडॉक्स रिएक्शन. ठीक है. तो ये एक कंप्लीट सेल का है. इसे हम चाहें तो हाफ सेल में भी डिवाइड कर सकते हैं, वो भी आगे आप पढ़ेंगे, जिसमें केवल रिडक्शन और केवल ऑक्सीडेशन होता हो. लेकिन जब हम एक कंप्लीट इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की बात करें तो पूर्ण एक विद्युत अपघटनीय सेल जो है वह होता है जिसमें ऑक्सी अपचयन अभिक्रिया पूर्ण होती है. अर्थात रिडॉक्स रिएक्शन होना जरूरी है. उसमें केवल रिडक्शन या केवल ऑक्सीडेशन ही नहीं होगा कंप्लीट रिएक्शन के लिए. तो कैथोड और एनोड पर इन आयनों के विसर्जन से विद्युत धारा इलेक्ट्रॉन के लेने और देने से, अब देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का देना देना हो गया, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन का आवागमन. एक जगह इलेक्ट्रॉन दिया गया और एक जगह इलेक्ट्रॉन लिया गया. तो इस तरह से ये जो सेल है इसमें कैथोड से तो विद्युत धारा अंदर आती है और एनोड के द्वारा विद्युत धारा बाहर जाती है, और बाहर जाने पर फिर हम कहेंगे एनोड से कैथोड की ओर जाती है. तो ये हमारा एनोड से कैथोड की ओर, और अंदर सेल के अंदर जो होता है वो कैथोड से एनोड की ओर. तो दोनों की दिशा जो है वो विपरीत होती है. ठीक है. दोनों जगह ये हमारा इंटरनल पाथवे कहलाएगा, आंतरिक परिपथ, और इसे हम बोलेंगे बाह्य परिपथ. ये हमारा आउटर हो गया. तो बाह्य परिपथ में एनोड से कैथोड की ओर, और आंतरिक परिपथ में ये कैथोड से एनोड की ओर विद्युत धारा का प्रवाह होता है.
और प्रवाह किसके माध्यम से हुआ, सोडियम आयन या क्लोरीन आयन। याद होंगे कि कैटायन और एनायन के माइग्रेशन से, ये कैटायन और एनायन का माइग्रेशन होता है। ये टर्म्स और है यहाँ पर, द माइग्रेशन ऑफ आयन, हियर वी कैन से द माइग्रेशन ऑफ आयंस। तो आयनों के अभिगमन, इसको हिंदी में बोलते हैं आयनों का अभिगमन। तो आयनों के अभिगमन से विद्युत धारा एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड तक प्रवाह होती है। अब आप ये चाहें कि इसमें विद्युत धारा का प्रवाह हुआ है कैथोड से एनोड की ओर या बाह्य परिपथ में दिशा को अगर आप जानना चाहें तो इसके बीच में आप एक वोल्टामीटर लगा दीजिए, ठीक है, ये वोल्टामीटर भी। तो वोल्टामीटर को आप जब लगा देंगे तो वोल्टामीटर की जो निडल है, जो उसकी संकेतक है, वो जिस ओर झुक जाएगा उस ओर इलेक्ट्रॉन की दिशा तय की जाएगी। तो इस स्थिति में अभी जब आप वोल्टामीटर को लगाएं तो ये इसकी निडल जो है ना वो इस तरफ झुकेगी, मतलब राइट हैंड के साथ, ये लेफ्ट से राइट की ओर झुक जाएगी। तो इससे ये सिद्ध हो जाएगा कि विद्युत का प्रवाह जो है ना वो इस दिशा से इस दिशा, कहने का मतलब हुआ कि एनोड से कैथोड की ओर हो रहा है। तो हम डायरेक्शन भी वोल्टामीटर के द्वारा पता लगा सकते हैं। ये तो हमारी थ्योरी हो गई। अब ये जो रिएक्शंस आपने अभी पढ़ी है, इन सब की अगर हम थर्मोडायनेमिक्स की बात करें तो देखिए सबसे पहले तो बात ये हो गई कि थर्मोडायनेमिक्स में फ्री एनर्जी कंसेप्ट एक यहाँ पर हमारे पास में है, फ्री एनर्जी कंसेप्ट। तो फ्री एनर्जी जो जी होती है, ये जी, द वैल्यू ऑफ जी शुड बी ग्रेटर देन द जीरो, अर्थात इस सॉल्यूट में या इस विलय पदार्थ में जो विलयन के अंदर है उसकी जो विलयन की जो ऊर्जा है वह ऊर्जा उस शून्य से ज्यादा होनी चाहिए। और जब वो शून्य से ज्यादा होगी तो इसका मतलब ये हो गया कि वो फ्री एनर्जी बन गई, मुक्त ऊर्जा। तो मुक्त ऊर्जा के कारण ही ये जो रिएक्शन है वो संभव होती है और ये एक प्रकार का नॉन स्पॉन्टेनियस सिस्टम हो गया, जिसे हम बोलते हैं हिंदी में स्वतः अपरिवर्तित प्रक्रम। तो थर्मोडायनेमिक्स क्या कहती है सेल में, इस सेल के अंदर जो है वो स्वतः अपरिवर्तित प्रक्रम पर आधारित होती है, ठीक है, अपने आप वहां पे रासायनिक अभिक्रिया हो रही है अपरिवर्तित, ठीक है, इसको बोलते हैं स्वतः अपरिवर्तित प्रक्रम। ये इसकी थर्मोडायनेमिक्स। और थर्मोडायनेमिक्स क्या कहती है कि उस सेल की जो फ्री एनर्जी है दैट शुड बी द ग्रेटर देन द जीरो, वो जीरो से ज्यादा होनी चाहिए, ये इसका मतलब हुआ। दूसरी बात, ये इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस जो है वो एक प्रकार की रिडॉक्स रिएक्शन है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है, इसमें ऑक्सीकरण और अपक्षय दोनों होंगे और ऑक्सीकरण जो है ना वो एनोड पर और कैथोड के ऊपर जो है अपक्षय होता है। तो इलेक्ट्रोलाइसिस पूर्ण होने पर सेल रिएक्शन जो है वो रुक जाएगी। अगर मतलब जितने भी धनायन और जितने भी ऋणायन हैं वो जब कंप्लीटली डिस्चार्ज हो जाएंगे, जैसे इसमें मान लीजिए कि पूरे सेल में 100 सोडियम और 100 आयन क्लोराइड है, तो जब ये 100 आयन जब रिड्यूस हो गए, ये 100 आयन जब ऑक्सीडाइज हो गए, उसके बाद में सेल रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी, ठीक है, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन कंप्लीट होने पर ये पूर्ण अभिक्रिया के समय सेल रिएक्शन हो जाएगी। और जब सेल रिएक्शन हो जाएगी तो ये जो निडल हमारी, ये निडल भी एक जगह स्टेबल हो जाएगी, ये वापस जीरो के ऊपर आ जाएगी। तो इससे ये सिद्ध हो जाएगा कि सेल के अंदर अभिक्रिया पूर्ण हो गई है, सेल रिएक्शन हैव बीन कंप्लीटेड, इलेक्ट्रोलाइसिस विल कंप्लीटेड। ये इस प्रकार से आपको सेल रिएक्शन के बारे में बताया गया है। अब देखिए कि ये तो सेल रिएक्शन के बारे में हुआ, तो भिन्न भिन्न इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर जो है हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक सब्सटेंस होना चाहिए, ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। इलेक्ट्रोलाइटिक, तो इलेक्ट्रोलाइटिक सब्सटेंस जो है ये इसके सॉल्यूट कहलाते हैं और जो सॉल्यूशन है वो एक्वस होना चाहिए। और एक्वस सॉल्यूशन पर ये धनायन और ऋणायन अपने अपने इलेक्ट्रोड की तरफ गमन करके और विद्युत धारा परिपथ को पूर्ण करते हैं। तो इस तरह का जो अध्ययन है वो माइकल फैराडे ने किया था।
माइकल फैराडे ये वैज्ञानिक थे जिन्होंने भिन्न भिन्न विद्युत अपघटनों का उनके विद्युत अपघटन का स्टडी करी थी और इस स्टडी से उन्होंने कुछ निष्कर्ष निकाले और वो निष्कर्ष जो है ये लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस के नाम से प्रसिद्ध हो गए। तो लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस ये फैराडे लॉज कहलाते हैं, इनको फैराडे लॉज भी बोलते हैं हम। तो सबसे पहले जो फर्स्ट लॉ है फैराडे का, जो प्रथम नियम है वो ये कहता है कि आयनों के विसर्जन पर जो निक्षेपित या जो मुक्त मात्रा है वो उस विद्युत धारा के समानुपाती होती है। So the discharge amount at the respective electrode will directly proportional to the electricity, विद्युत धारा के समानुपाती होती है। तो हम ये कह सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि कैथोड पर m ग्राम, ठीक है, आपके कैटाइन जो है ना वो निक्षेपित हुए, डिपॉजिट हुए, विसर्जित हुए, तो धीरे धीरे क्या होता है कि कैथोड जो होता है उस पे आयन अट्रैक्ट होकर के वो डिस्चार्ज होने लगता है, तो एनोड जो धीरे धीरे कम होने लग जाता है, कैथोड धीरे धीरे बढ़ने लग जाता है। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि उस पर द्रव्यमान मास ऑफ द न्यूट्रल स्पीशीज विल डिपॉजिटेड, वो उस पर जमा हो जाएगी। तो ये जो धारा की मात्रा है ये Q के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल समानुपाती होगी। तो Q इज द अमाउंट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, Q क्या है? विद्युत धारा की मात्रा। तो विद्युत धारा की मात्रा, और इसको विद्युत धारा को हम Q को इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू ये आपके I और T, ठीक है, I और T, और I का मतलब यहाँ पर क्या है? एम्पियर, इसको हम एम्पियर में बोलेंगे, और T जो है ना वो सेकंड होगा। तो कितने एम्पियर विद्युत जो है ना कितने सेकंड तक प्रवाहित की गई, ये आपके Q का मतलब हो जाएगा। तो अब हम इसको सीधा m इज इक्वल टू आप एक कांस्टेंट के द्वारा इसको लगा सकते हैं, तो ये आपका हो गया W Q, या इसको Z से भी आप डिनोट कर सकते हैं, या इसको आप m इज इक्वल टू W I T, इसको द्वारा भी आप इसको लिख सकते हैं। अब आपसे पूछा जाए कि ये जो m है वो आपका जो ये फैराडे कांस्टेंट है, इसको यहाँ पे फैराडे कांस्टेंट बोला जाएगा। तो फैराडे कांस्टेंट को हम Z से भी डिनोट कर सकते हैं या W से भी डिनोट कर सकते हैं। तो ये फैराडे कांस्टेंट जो है इसकी इक्विवेलेंट कब होगा? तो इसका सीधा सा ये है कि जैसे एक मोल सॉल्यूशन में हमारा जब मोलर सॉल्यूशन है तो उसमें 1 एम्पियर की धारा को 1 सेकंड के लिए प्रवाहित किया जाए, ठीक है, 1 एम्पियर की धारा को 1 सेकंड के लिए प्रवाहित किया जाए, तो उस इलेक्ट्रोड पर जो निक्षेपित जो मात्रा है, ठीक है, ये उसके स्थिरांक के बराबर हो जाएगी। तो उस समय इसको I इज इक्वल टू 1 एम्पियर, ठीक है, और T इज इक्वल टू 1 सेकेंड, और उस स्थिति में n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? W हो जाएगा। इस समय इसको हम यहाँ पर इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट बोलेंगे, हिंदी में से कहेंगे रासायनिक तुल्यांक, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, ये इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट के नाम से जाना जाएगा। सो W इज इक्वल टू, अगर आप आपके ये इक्विवेलेंट W का डिटरमिनेशन करना चाहते हैं तो ये हो जाएगा m/IT। तो आप इस तरह को इसको ये तीनों के वैल्यूज अगर हमें पता हो तो उसका हम ये W अर्थात इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट की उसकी मान को भी हम यहाँ पे गणना कर सकते हैं। तो इसका मात्रक जो था वो ग्राम प्रति लीटर एम्पियर प्रति सेकंड। देखिए ग्राम आपसे पूछा जाए कि इसकी यूनिट बताओ, तो ग्राम पर लीटर और पर एम्पियर, ठीक है, तो ग्राम पर लीटर पर एम्पियर इसका यूनिट, इसकी इकाई होगी। ये फैराडे का प्रथम नियम कहलाएगा, इसको फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं। अब हम बात करते हैं सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस की। इस सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होगा?
ये फैराडे का दूसरा नियम। और इस दूसरी नियम में फैराडे ने क्या किया कि एक ही समय में भिन्न भिन्न विद्युत अपघटों को आपस में जोड़ दिया और फिर उनमें निक्षेपित जो विद्युत धारा की मात्रा है उसका उन्होंने अध्ययन किया। उदाहरण के लिए जैसे हमने ये दो सॉल्यूशन ले लिए, ये सेकंड लॉ कहलाएगा। एक हमने कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया है CuSO4 और दूसरा में ले लिया है AgNO3 का। तो कॉपर सल्फेट से Cu+2 आयन आएंगे और AgNO3 से Ag+ आयन आएंगे। अब ये दोनों जो धन आयन है वो ये दोनों सेल है, ये हमारा एक सेल हो गया और ये दूसरा सेल हो गया, ये दो सेल हो गया। अब इन दोनों सेल को आप इंटरकनेक्ट कर दीजिए तो भिन्न भिन्न विद्युत अपघटों में अब ये इलेक्ट्रॉन दो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा कैथोड पर और ये Cu में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये कैथोड का रिएक्शन हो गई। इसी तरह से यहाँ कैथोड पर क्या होगा, ये +1 इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट इनटू द Ag, तो ये न्यूट्रल कॉपर हो गया, ये न्यूट्रल सिल्वर हो गई। तो कैथोड पर सिल्वर और कॉपर का डिपोजिशन हो जाएगा। अब इन दोनों की मात्रा को हम एक साथ पता लगा सकते हैं कि W1/W2 ये सेकंड लॉ हो गया = E1/E2, अर्थात E2 और E1 तो हो गए इलेक्ट्रोकेमिकल कांस्टेंट विद्युत रासायनिक तुल्यांक, और W1 और W2 क्या हो गए कि उस रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड पर जो विक्षेपित मात्रा है उनका मान हो गया। तब हम ये बता सकते हैं कि हमारा जो M1 है M1/M2, ठीक है, M1/M2 = E1/E2, या इसको आप कैसे लिख सकते हैं W1/IT W2/IT, इसको इस तरह से लिखा जा सकता है। तो अब सेकेंड लॉ क्या कहता है कि एक से अधिक विद्युत अपघटों विलयनों में अगर एक ही समय में निश्चित मात्रा में विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो इलेक्ट्रोडों पर अवक्षेपित या निक्षेपित भार का अनुपात उनके रासायनिक तुल्यांकों के अनुपात के बराबर होता है। ये सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस कहलाएगा। इसको फैराडे का दूसरा नियम भी बोलेंगे। तो जैसे ही आपका प्लस तो Cu+2 और Ag हो गया, ठीक है, ये Ag हो गया, यहाँ पे Cu का इक्विवेलेंट आ जाएगा और यहाँ पे सिल्वर का इक्विवेलेंट आ जाएगा। तो रासायनिक तुल्यांकों के द्वारा इन भारों के अनुपात को उनके द्वारा हम गणना कर सकते हैं। ये सेकेंड लॉ। और इसी में 1 ग्राम तुल्यांक भार के निक्षेपण के लिए हमें कितनी धारा चाहिए, प्रश्न ये पूछा जा सकता है। इफ M1 and M2 = 1, अगर ये दोनों जो है ना वो 1 के बराबर हो, M1 = M2 और = 1 ग्राम, तो उस समय कितनी विद्युत धारा का प्रवाह किया गया। तो इसके लिए आपको बताना पड़ेगा कि यहाँ पर जो है ये 96500 कूलाम, ठीक है, ये कूलाम है। तो 96,500 कूलाम विद्युत धारा जब 1 सेकंड के लिए प्रवाहित की जाएगी तो उस समय निक्षेपित पदार्थों की जो मात्रा है वो 1 ग्राम तुल्यांक के बराबर हो जाएगी। तो अभी Q का मान आप इसमें इस तरह से भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि Q = the equivalent weight upon W, equivalent weight of Ag/W। तो अब इसका मात्रा अगर आप ये निकालना चाहें इसमें तो हम कह सकते हैं कि ये 10788.88 है ये अपॉन 0.001180। तो Ag का ये रासायनिक तुल्यांक है, ये हमारा रासायनिक तुल्यांक है 0.001180। उससे आप इसको डिवाइड करेंगे तो हमारी मात्रा जो है ये 96500 के बराबर आ जाएगी। अर्थात ये इसको कैलकुलेट करेंगे तो 96500 के बराबर हो जाएगी। तो इस तरह से हम ये रासायनिक तुल्यांक के बारे में इसको पता लगा सकते हैं। तो M = अगर हम कहें इसमें M का मान जो है वो इस फैराडे के 1 फैराडे
जब हम कहते हैं कि 965 किलो कूलम विद्युत धारा प्रवाहित की गई तो ये इज इक्वल टू 1 फैराडे हो गया, ये 1 फैराडे, ठीक है। तो अब n इज इक्वल टू, अगर आप फैराडे से इसको कैलकुलेट करना चाहें तो आपके ये ITE ये इक्विवेलेंट हो गया, ठीक है, अपॉन F, तो F का यहाँ पे फैराडे हो गया, ठीक है, और I जो है एम्पियर हो गया, T सेकंड के अंदर मेजर करेंगे, ये आपका इलेक्ट्रोकेमिकल हो गया। तो इस तरह से ये पूरा का पूरा आपका इलेक्ट्रोलाइसिस सिस्टम चलाएगा, और इसमें इसका यूज जो है इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए कर सकते हैं, जिस पर धातु का लेपन किया जाता है उसको कैथोड बना करके उसको इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जा सकती है, और एनोड को जिस धातु का लेपन किया जाता है उसी का लिया जाता है।